Let's start with the categories of data types. First is numeric types. Numeric types is data type which is used for describing numeric values. Numeric values including mobile number, age. Okay, so this is numeric types. So the different types of numeric data types available are real, float, numeric, boolean, tiny integer, small integer, integer. Yeah, so these are the different types of numeric data types. नेक्स्ट इज अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप्स. इसमें आ जाएंगे ना अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक दोनों टाइप्स, जैसे कि लॉन्ग वार चार कैर वार कैर इन नो केस. Next comes binary data types. Binary data types include for storing data in the binary formats. ठीक है. It can be used for storing photos, music, videos, files or in general file of any format. ठीक है. Next come list है इसकी. It is long var binary, var binary. Date time data types are used for describing the date and time values for the field used in the table of a database. ठीक है. जो field होती है उसके लिए what is the field? Field is the question we ask about the information stored in the table or a record. ठीक है. तो field के लिए जो time और date और time describe करने के लिए हम date time data type का यूज़ करते हैं. Next is different data types, date, time, टाइम स्टैम्प. ना दो तरह की कीज़ होती हैं. इसको याद करने का एक मैंने मेमोराइज करने के लिए एक वो बनाया है. इट इज़ दैट वन पेरेंट यानी कि प्राइमरी की इज़ यूज टू स्टोर सिंगल इंफॉर्मेशन, यानी कि सिंगल टेबल में इंफॉर्मेशंस. मैनी चाइल्ड यानी कि फॉरेन की डिफरेंट टेबल्स. ठीक है, मतलब मल्टीपल टेबल्स विच आर लिंक्ड विद अ कॉमन फील्ड. सी प्राइमरी की is a unique value that identifies a record in a table. जो आइडेंटिफाई करते हैं एक रो को टेबल में. प्राइमरी की is a unique value that identifies a row in a table, and these keys are also indexed in the database, making it faster for the database to search a record. Next comes foreign key. Foreign key क्या है? Foreign key identifies a column or a set of columns in one table that refers to a column or a set of columns in another table. ठीक है. इसका मतलब है कि प्राइमरी की जो होती है ये एक रो को, एक यूनिक वैल्यू है जो एक रो को आइडेंटिफाई करवाती है एक टेबल में. ठीक है. दीज कीज़ इंडेक्स होते हैं डेटाबेस में, जो हमें जो भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए फास्टर हमें वो बताते हैं. नेक्स्ट इज फॉरेन की आइडेंटिफाइज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अनदर टेबल. ठीक है, ये हो गया हमारा फॉरेन की. नेक्स्ट कम्स डेटा लैंग्वेजेस. टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं. कितने टाइप्स ऑफ? टू टाइप्स ऑफ. एक तो होती है DDL, एक होती है DML. DDL इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. Now data definition language, it is a standard for commands. ये एक standard है commands के लिए that supports, ठीक है, that defines the different structures. It is a standard for commands that defines the different structures of a database. ठीक है. DDL statements are used to create, modify and remove database. ठीक है. ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, इंडेक्सेस एंड यूज़र्स. एक बार फिर से डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स एंड इज़ यूज्ड टू सपोर्ट, और you can say it is used to that defines the different structures of the database, and the DDL statements are create, modify and remove database objects such as tables, indexes and users. ठीक है. कॉमन DDL स्टेटमेंट्स हैं क्रिएट, एड एंड ड्रॉप. यही तीन जो हैं हमारे कॉमन DDL स्टेटमेंट्स है. क्रिएट यानी कि इट इज़ यूज टू क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. ऑल्टर यानी कि यूज टू मॉडिफाई डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. ड्रॉप मीन्स यूज टू डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. सो DDL के तीन ही कमांड्स हैं. एक है क्रिएट, एक है ऑल्टर एंड एक है ड्रॉप. These are the three DDL commands or statements. ठीक है. So what is data definition language? This is the standard for commands that it is a standard for commands in a database that
provides, ठीक है, that defines the different structures of database. Is the data DDL statements are used to they create, modify, and remove database objects such as tables, indexes, and so on. Okay. Data manipulation language, it is a standard for commands that enables the user to access as well as manipulate the data in the database. ठीक है, कॉमन DML स्टेटमेंट्स हैं. पहला तो है सिलेक्ट, फिर इंसर्ट, फिर आएगा हमारा सेलेक्ट, इंसर्ट, देन डिलीट एंड देन अपडेट. सो सेलेक्ट क्या है? सेलेक्ट इज़ यूज्ड फॉर रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन इन फ्रॉम द डेटाबेस. ठीक है, रिट्रीवल के लिए इंफॉर्मेशन की डेटाबेस से. Insert is used for insertion of new information in the database. Delete is used for deletion of information in the database. Update is used for modification of information in the database. ठीक है. Select जो है यूज़ होता है किसके लिए? Retrieval of information के लिए database से. Inserting or insertion of new information in the database. Delete is used for deletion of information in the database. And update is used for modification of information in the database. टाइप्स ऑफ DML. ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज दो तरीके के होते हैं. एक तो प्रोसीजरल होता है, एक नॉन प्रोसीजरल होता है. प्रोसीजरल जो होता है, इट इज़ द यूज़र स्पेसिफाइज व्हाट डेटा इज़ नीडेड एंड हाउ टू गेट इट. जो यूज़र है वो स्पेसिफाई करता है कि किस डेटा की ज़रूरत है और किसे कैसे लें. नॉन प्रोसीजरल जो होता है, यूज़र ओनली स्पेसिफाइज व्हाट डेटा इज़ नीडेड, कि यूज़र केवल यही स्पेसिफाई करता है कि कौन सी डेटा की ज़रूरत है. और प्रोसीजरल जो है ये भी बताता है कि उसको कैसे लिया जाए. ठीक है, वो प्रोसेस बताता है उसको एक्वायर करने की. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ DML. ठीक है, एक तो है प्रोसीजरल, एक तो है नॉन प्रोसीजरल. जो प्रोसीजरल है, the user in the procedural DML, the user specifies what data is needed and how to get it. And in non-procedural, the user only specifies what data is needed. ठीक है, अब एक प्रॉपर और एक पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे. वो है SQL, विच इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है, इस आर्टिकल में हम SQL कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे. आई एम गोइंग टू कंसिडर दी फॉलोइंग डेटाबेस एज एन एग्जांपल. ये देख लो, मैं बता देती हूँ इसमें एक बार. एम्प्लॉई ID है मेरे ख्याल से. देखो, एम्प्लॉय तो यहाँ पे हो गया आइटम. वेट फॉर अ सेकेंड. है एम्प्लॉय इज़ आइटम. ठीक है, यहाँ पे ये जो हो गए हमारे फील्ड, ये हमारी वैल्यू, ये पूरा हमारा हो गया रिकॉर्ड, एंड दिस इज द टेबल. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्रिएट करने के लिए टेबल को हम कैसे लिखेंगे? क्रिएट टेबल एम्प्लॉय इन्फो. ठीक है, क्रिएट टेबल, दिस इज कमांड. ड्रॉप टू डिलीट, ड्रॉप डेटाबेस एम्प्लॉय, ड्रॉप टेबल नेम, इस तरीके से. ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय इन्फो. ऑल्टर, दिस स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स. ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय इन्फो ऐड ब्लड ग्रुप, तो इसकी मॉडिफाई करना है हमें. इसमें और क्या ऐड करना है? एम्प्लॉय इन्फो ऐड करना है, ब्लड ग्रुप, वारकार. इंसर्ट करने के लिए स्टेटमेंट इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स. इसकी इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय इन्फो वैल्यूज़ ये दी हैं, ये हाउस नंबर इतना. अपडेट, दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द टेबल. अपडेट एम्प्लॉय इन्फो, सेट एम्प्लॉय नेम इज़ इक्वल्स टू अहाना, सिटी इतना, वेयर एम्प्लॉय ID इज़ इक्वल्स टू 1. ठीक है, इस तरीके से हमें अपडेट करना है. इस तरीके से कमांड्स बोले जाएंगे. डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो वेयर एम्प्लॉय नेम इज़ इक्वल्स टू प्रीति. ठीक है, एम्प्लॉय इन्फो से डिलीट करो जहाँ पे एम्प्लॉय नेम जो है प्रीति है. सिलेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, एंड डेटा रिटर्न्ड इज स्टोर्ड इन अ रिजल्ट टेबल called result set. Select employee ID, employee name,
फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करो एम्प्लॉय इन्फो से। ये जो स्टार है इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑल द टेबल सेलेक्ट फ्रॉम इन्फो लिस्ट, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एंड आई वुड डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस, वेट।